Hello friends, this is Aman from Bihar Begusarai, and I would like to say that exams in this COVID situation, that 2 lakh JEE and NEET, where more than 25 lakh students appear, is nothing less than a massacre, and we don't want to be a part of it. We are not lab rats that officials would keep experimenting on us with their useless SOPs that have already failed many times. In spite of failing SOPs, rising COVID cases up to 70,000 per day, and our regular protest for last 15 to 20 days, Ministry of Education, which was earlier MHRD, is still quiet. Still, only few media houses had seen our pain and covered us. Most of them are still unaware of the fact that our life are at risks. Our so-called Indian society, who always speaks about depression-free life, can't see our depression and would come out to protest for us and seek justice once everything is over and we are dead. We request Honorable Prime Minister Sir and Honorable Supreme Court to save the life of students whom they call the future of our country. Thank you, sir. Hello, I'm a NEET aspirant, and today I'll be addressing concerns on the behalf of students to authorities like the Supreme Court, which have now become our last ray of hope. So, the very first thing I'd like to say is that the NTA is formulating a lot of SOPs which aren't working on ground reality. There is a lot of evidence on social media that the exams conducted so far, there is no sanitization, no thermal screening, or social distancing. Now, I would like to say one thing. NEET and JEE have 25 lakh aspirants all over India, including parents who will accompany their children to the exam center. They will travel hundreds of kilometers. They will have to arrange for, an accommodation like a hotel. And it's not like a exam center is present in every district of India, and that's not practically possible too, right? Does this SOP guarantee that every student out of the 25 lakh is safe? Because if it doesn't, it does violate the right to life, because health is a large portion of life, and many people can't afford this kind of treatment of COVID, especially looking at the situation now. Our medical infrastructure is crumbling. I do understand that everybody is getting frustrated by studying so much, and I have gone through it too. But when you're kept in a room, how much of a social distancing you do, 10 people, 15 people, 12 people, keep in mind that most of the infections are asymptomatic now. AIMS has done a study that says that temperature does not really indicate whether you have COVID or not. So these will go undetected in the thermal screening, and we are being exposed to the pathogen or virus at large. And if somebody has a slightly higher temperature, not due to COVID, they are kept in isolation with other people who might have a COVID-related fever. Again, a huge risk for them. Think about the mental pressure on a person who has been diagnosed with COVID-19. If you are talking about mental pressure of this exam determines their future too. How will they in this state write an exam for 3 hours, travel to the center? It'll take a huge toll and stress on the system, because it does cause extreme fatigue, and it may also hamper the students' concentration to study at this time. Thank you for listening. I want to tell something to Government of India that my son is an asthma patient. I do not want to send him to outside in the crowded places where he will attend the examination. So I request you to postpone the JEE Main. I just want to tell to the government of India that we students are not afraid of the examination itself, because last time only I qualified for NIT as well, and we are all prepared for the examination, but we are not prepared to face this pandemic situation. COVID-19 is a deadly virus, especially for me when I'm suffering from asthma. So I request the government of India to please postpone the examination and save the lives of lakhs of students present inside India. Please postpone this examination. Namaste. इसके साथ गार्जियन भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, है ना, पूरा देश बाढ़ से ग्रसित है, कोरोना से ग्रसित है, और ऐसे काल में सरकार का निर्णय लेना कि नीट और इंजीनियरिंग का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये उचित नहीं है, सरासर गलत फैसला है, क्योंकि कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के जान को जोखिम में डालकर एग्जाम देने के लिए नहीं भेज सकता। बहुत स्थिति खराब है।
अगर सरकार जो है वहां दिल्ली में बैठकर तो नहीं देख रही है कि क्या स्थिति है अन्य जगहों की। अन्य जगहों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। ऐसे काल में सरकार को एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं चाहिए। नीट और इंजीनियरिंग के एग्जाम की डेट को बढ़ाया जाए ताकि बच्चे डर मुक्त होकर पाए गए थे। अभी परसों नरसों में यूपी बीएड का एग्जाम हुआ है। यहाँ पर भी हमने देखा इसमें 4.5 लाख बच्चों ने कराया था रजिस्ट्रेशन, और यहाँ भी देखा हमने कैसे सेंटर्स के बाहर पूरी तरीके से भीड़ लग गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था। तो सर आप जब 4.5 लाख बच्चों को और 1.5 लाख बच्चों को नहीं आपने संभाल पाए, तो सर आप कैसे 25 लाख बच्चों को जो नीट और जेईई को टोटल को मिलाकर आप कैसे संभालेंगे? सर आप हमारी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं। सर हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स आएंगे, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को अस्थमा की बीमारी है, सर वो पेरेंट्स सेंटर्स के बाहर खड़े रह के हमारा वेट करते हैं। सर वहाँ पे भी पूरी भीड़ लग जाएगी, तो सर आप वहाँ पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएंगे? सर मेरा यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर, जब सर हम वहाँ पर किसी बच्चे को अगर कोविड पॉजिटिव है, उसको कोरोना की बीमारी है, तो सर आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे बीच बैठा है वो कोरोना पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव नहीं है? तब क्या पता वही कोविड पॉजिटिव बच्चे हमारे बीच बैठ के पेपर देगा। आप कह रहे हैं कि आप थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। सर थर्मल स्क्रीनिंग, अगर वो बच्चा कोरोना जो कोविड की बीमारी है वो एग्ज़ाम से 2 घंटे 3 घंटे पहले पीसीएम पैरास्टामोल खा के आ जाता है और उसका फीवर उतर जाता है, सर फिर आप थर्मल स्क्रीनिंग से कैसे पता लगा पाएंगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है? सर वो हमारे बीच में बैठ के एग्ज़ाम देगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जब गार्ड वहाँ पर जो चेकिंग करते हैं, स्टाफ होते हैं, वो हम लोग को एंट्री देने से पहले चेकिंग करते हैं। सर हम जब लास्ट एग्ज़ाम दिए थे तो उन्होंने चेकिंग की थी, तो 1 ही 2 गार्ड होते हैं, वो सभी स्टूडेंट को चेक करते हैं, उनको पूरी पॉकेट चेक करते हैं, ऊपर शर्ट्स पैंट्स, सर सबको बच्चे को टच करके पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसकी चेकिंग करते हैं कि कुछ सामान तो नहीं है। तो सर वही 2 या 3 गार्ड जो होंगे वो पूरे बच्चे को चेक करेंगे, सभी बच्चों को टच करेंगे, तो सर इससे कोविड का नहीं फैलेगा। सर उसके बाद अगला क्वेश्चन, सर वहाँ पर हम लोग को अगर आप प्यास लगती है, आपने पानी की बोतल्स को अलाउड नहीं किया है। सर जब हम लास्ट ईयर हमको प्यास लगी थी तो वहाँ पर एक प्यून भैया आते थे और वो एक बोतल देते थे, उस बोतल से हम लोग पीते थे। वही बोतल सभी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वो स्टूडेंट्स पीता था पानी उससे, फिर वो बोतल हमारे पास आती थी। तो ये बोतल जो होगी पानी की पूरे कॉलेज क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो सर उससे कोविड नहीं फैलेगा। मास्क बोलते हो आप, मास्क 1 घंटे नहीं लगा सकते ढंग से। आप हमको बोल रहे हो कि पहले आप 3 घंटे लगाओ, उससे पहले 2 घंटे हमारी चेकिंग होगी, उससे पहले भी हमको लगा के आना पड़ेगा हमारी सेफ्टी के लिए, है ना। आप उस चीज के लिए बोल रहे हो, फिर बोलते हैं एसओपीस की बात हुई। एसओपीस का क्या हुआ? क्या हुआ? कर्नाटका में वही हाल है, 60 बच्चे वहां पर पॉजिटिव हैं। यूपी बीएड के एग्जाम में उसमें क्या हुआ? 38 बच्चे आगरा से पॉजिटिव है। आप बात कर रहे हो अमित शाह, है ना, वो एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर हो करके भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो एक हम तो भी नॉर्मल बच्चे हैं, हम इंसान हैं, वो भी नॉर्मल, है ना। हमारे पास ना ही तो इतनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटीज है ना। और ये जो कमरों में बैठ के जो फैसला ये कर रहे हैं ना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम एक दिन वहां पर बाहर जाकर आओ और देखो। हमारे गांव से हमारा सेंटर काफ़ी दूर पड़ता है, हमको नीट का परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता, लेकिन अब ट्रेन तो चल ही नहीं रही है यहाँ पे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पैसेंजर ट्रेन यहाँ से हमारे सेंटर वाले शहर तक जाती थी, लेकिन पैसेंजर ट्रेन सारी बंद है। जो एक्सप्रेस ट्रेनें स्पेशल वाली चल रही हैं वो यहाँ के छोटे वाले स्टेशन पे रुकती ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं, हमारे जैसे काफ़ी छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, और हमारा जो एरिया है वो पूरा कंटेनमेंट जोन है। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। निकल भी जाएंगे तो पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है, यहाँ बसें भी नहीं चल रही हैं, ना कोई सुविधा है वहाँ तक जाने की। सर आपने न्यू पॉलिसीज़ बनाई हैं, हम लोग मानते हैं आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है, बट एज एन एग्जाम्पल आप KCET का एग्ज़ाम देख सकते हैं। वहाँ की हालत देख के हमारे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया है कि अब तो बिल्कुल नहीं जाना है एग्ज़ाम देने, क्योंकि हमारे अगर देयर इज़ एन कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ एंड द एग्ज़ाम, दैन मेरी मम्मा तो ऑफकोर्स मेरी लाइफ चूज़ करेंगी ना, और बहुत से बच्चों की मम्मा यही चूज़ करेंगी। आप देख सकते हैं सेंटर के अंदर आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी, बट सेंटर के बाहर आप क्या श्योरिटी दे सकते हैं
हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को छोड़ने आते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे संग आएंगे। अब मेरे पेरेंट्स को अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ, वो लोग घर जाएंगे, घर पे जाके मेरे भाई बहन होंगे, उन्हें हो सकता है, पूरी सोसाइटी को हो सकता है। ऐसा तो है नहीं ना, एक बच्चे से उसके घर वालों को, वो घर वालों को, उसकी फैमिली को, उसकी सोसाइटी को, सर सबको हो सकता है। ये बड़े लेवल पे एग्ज़ाम होता है हमारा, ऐसा है नहीं कि एक बच्चे का है सर, इतने सारे बच्चों का है। उस बच्चों से फैमिली जुड़ी हुई है, उस फैमिली से सोसाइटी जुड़ी हुई है, सबका पूरा लॉस होगा सर। ऐसा है नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स का लॉस है सर, प्लीज़ इस बारे में सोचिए। देखिए, मेरा और मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना है कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि केसेस हैं कंट्री में, डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मोस्टली स्टूडेंट डिप्रेशन फील कर रहे हैं और प्रेशर फील कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन और प्रेशर में स्टूडेंट्स की वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्वालिटी वाली, जो लास्ट टाइम पर होना चाहिए। वो एफर्ट्स वगैरह स्टूडेंट नहीं लगा पा रहा है। जो लास्ट टाइम पर एक आग होती है, वो होती है कि सिलेक्शन लेना है, तो इसमें पेपर का एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा। कब कोई कह रहा कि पोस्टपोन्ड होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, कोई 13 सितंबर को होगा, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट प्रेशर फील कर रहा है, तो उस प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है जो होना चाहिए लास्ट टाइम पर। जो एक सिलेक्शन के लिए पढ़ाई होना चाहिए, कॉलेज के लिए एक पढ़ाई होना चाहिए, ड्रीम कॉलेज के लिए जो बंदा पढ़ता है, वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हेलो एवरीवन, आई एम नीट एस्पिरेंट एंड जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो शायद जेई एस्पिरेंट्स हो या नीट एस्पिरेंट्स हो, और आप में से कई होंगे जो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं और कई होंगे जो नहीं चाहते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग बोल रहे हैं डू नॉट पोस्टपोन नीट चाहिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है? आप बोल रहे हो कि अगर तुम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तुम पोस्टपोन कराना चाहते हो, तो तुम एग्ज़ाम ही मत दो। मतलब क्या? तैयारी हमने भी की है, पढ़ाई हमने भी की है, हम भी एग्ज़ाम के लिए वेट करते, लेकिन तुम डॉक्टर हो, तुम आगे चल के डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए दूसरों की जान बचाना। और यहाँ इतने लोग मर रहे हैं और तुम चाहते हो कि 16 लाख बच्चे नीट में और बाकी जितने भी बच्चे हैं जेई में, ये सब इकट्ठा होकर एग्ज़ाम दें। कैसे? तुम्हें नहीं लगता कि कोरोना वायरस फैलेगा? तुम तो बायो पढ़ रहे हो यार, बायो के स्टूडेंट्स, तो बायो वालों को तो मेनली ये समझना ही चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप पैसे वाले हो, आपके पास इतना पैसा है, आप प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हो। जिनके पास नहीं है वो, उनका खर्चा क्या आप दोगे? अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो क्या आप उसका बिल भरोगे हॉस्पिटल का? या किसी की डेथ हो जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे? आप अपने बच्चे का थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल सकते, लेकिन यहाँ हज़ारों पेरेंट्स और बच्चों के अंदर जो प्रेशर है वो मैं ये मास्क पहन के बात भी नहीं कर पा रही हूँ, और आप चाहते हो कि मैं 3 घंटे ये मास्क लगा के एग्ज़ाम दूँ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हाउ आई एम सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स? मैं अपना एग्ज़ाम दूंगी या ये इसका ध्यान रखूंगी? सोशल डिस्टेंसिंग ना सिर्फ पेपर्स पे अच्छी लगती है। KCET का एग्ज़ाम देख लो, बीएड का देख लो, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई है। जो भी है ना, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन करना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, जिम ओपन हो गए हैं, सब ओपन हो गया है, आप जाते हो जिम? आप सिनेमा हॉल जाते हो? ज़्यादातर जो भी इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, वो बाहर सिर्फ ज़रूरी काम पे ही जाते होंगे। मैं मेरे घर में पेरेंट्स को बाहर भी नहीं जाने देती हूँ। कुछ सामान होता है तो वो मैं और मेरा भाई ही लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी 40+ है या 45+ है, उनका कोरोना के कांटेक्ट में आना, मतलब अगर वो लोग आ गए तो उनके लिए ये रिस्की है। हम बाहर भी नहीं जाते हैं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी जाएंगे हमें एग्ज़ाम दिलाने, हमारे कारण उन्हें कुछ हो गया तो। मैं चाय वाला हूँ, मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। इसकी महामारी की वजह से इसमें मतलब परीक्षा या नीट देने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। हम आप सब से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। हमारे पिताजी बहुत गरीब आदमी हैं, हमको पढ़ाने के लिए 6 लाख रुपया लोन लिए थे। 2 साल हमको बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं। हमारा घर में 4 महीना से राशन नहीं है, उसके लिए 25,000 रुपया लोन लिए हैं। कोरोना काल में हम जैसे तैसे जी रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, जिसके बीच एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है और एग्ज़ाम सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है, और गाड़ी वाला 25-30 हज़ार रुपया मांग रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे? 10,000 रुपया का डिमांड करता है। अगर हमको कोरोना हो गया, हमारे पिताजी का कोरोना हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी। बिहार सरकार का स्थिति इतना खराब है, कहाँ से करेगी? इसका जिम्मेदार
कौन होगा। हम सबसे निवेदन है पोखरियाल जी साहब से, सबसे सर से, कि कृपया एग्ज़ाम कुछ दिन पोस्टपोन्ड कर दे, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम ले। हम देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से रेडी हैं, मगर इस काल में हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हम सक्षम नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाए। हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है। हमारे घर में पिताजी एक हैं जो कमाते हैं, उनको कुछ हो जाएगा तो मेरा घर का रखवाली कौन करेगा, मेरा पूरा परिवार का खर्चा कौन उठाएगा। हम आप गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को सुरक्षित नहीं कर पाए। सर, मैं नीट का एस्पायरेंट हूँ। मैं इस परिस्थिति में जूझ रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है। आज 14 अगस्त है। हम इस परिस्थिति में डूबे हुए हैं और हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा का भी सब कुछ बंद है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सब बंद है और हम चाहते हैं, या हमारी मांगे हैं कि आप नीट और जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करें प्लीज़ सर। देख लीजिए सर। पूरे रूम में पानी ही पानी। For the past 1 month, we have been continuously crying and tweeting for postponement of NEET and JEE. And today was very crucial because we were waiting desperately for the PM's announcement regarding this matter. But what we saw just half an hour ago, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, our Honorable HRD Minister, what did he say on DD News? I don't know which section of parents and students are forcing to conduct the examination that he is so much concerned that he forgot all of us, the majority of people, 30 lakhs of us, who are just continuously tweeting and tweeting. Many big people, many political people, they came and they supported us, but the government couldn't see. I just could not expect this from our Honorable Prime Minister. Today my all hopes are lost, and I think you all are feeling the same. I don't understand that is the government trying to act blind and whom they are trying to support. I don't want to speak over this because we don't have a clear proof, but it's crystal clear that there is a humongous pressure. From where are they getting dealed? They are more concerned about the coaching people and the private colleges that they will shut down, and they don't care about us and what SOPs they talk. Doctors have said, WHO has said that more than 10 minutes of contact and more than 30 minutes of contact can cause COVID, whether it is the 6 feet distance or it is within a room. And what about the people who will be asymptomatic? And how will we write the exam for 3 hours continuously wearing masks and gloves? We will have to travel long distances. We will have to come back. If anything happens to our parents and grandparents who will take us, who will be responsible for this? I just cannot expect this from our Prime Minister, that he has become so blind and deaf that he just cannot speak. He can share a video with playing with a peacock. He can show condolences to the building which collapsed in Raigad, which is a private building. But he cannot speak on a national matter. The students are crying, the parents are crying, the political people are asking for the help. But he is not paying any heed. I'm so sorry, but this proves that this government is totally sold now. And they don't care. They just want to make rich more richer and poor more poorer. I want the examination to be postponed because we've seen in many state level examinations like Karnataka KSET, Kerala KEM exam, and recently the UP B.Ed exam, and we've seen that SOPs have failed since they're not able to control the parents outside. There's a lot of crowd over there and not many people can afford the hospital bills. Many people don't come from a rich background. They don't have a proper transport system to get to the center, and in states like Bihar and other northeastern states, floods are just demolishing everything. It's not the right time to conduct the examinations. Health is wealth. Have take lots of medicines per day, almost 40 per day. As you can see here is
oxygen cylinder, and this is the vein channel in my hand. So I really just can't study in these days, and I am not fully cured till now. I am having some breathing problems till now. So I'm requesting you to postpone JEE and NEET and conduct it after the pandemic is over. Neither 25 lakh students will be in great danger. Thank you, sir. हेलो, मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंघाड़ा है। मैं राजस्थान के कोटा ज़िले से हूँ। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ और इस समय जो भारत की सिचुएशन और पूरे भारत की सिचुएशन बनी हुई है, इस समय डेली कम से कम 60 से 65 हज़ार केस निकल रहे हैं और इस समय जो नीट और जेई की जो एग्ज़ाम की तारीख बता रखी है 13 सितंबर और जेई मेन के लिए 1 से 6 सितंबर, उन तारीखों को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो अभी सिचुएशन बनी हुई है बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिलवाया जाए और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि वो एग्ज़ाम सही से दे पाएँ जिस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है। मैं खुद जहाँ कोटा ज़िले में रहता हूँ, यहाँ पे हमारी कॉलोनी में पूरे चारों तरफ से कोरोना पेशेंट से चारों तरफ से मोहल्ले को सील कर रखा है और इस सिचुएशन में एग्ज़ाम के लिए सेंटर पे जाना और फिर वहाँ पे पेपर देना इतने सारे बच्चों की भीड़ में मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए ताकि बच्चे अच्छे से। Hello everyone, I am a NEET aspirant, a dropper, and I'll be taking the NEET this year. I don't want to disclose my name due to obvious reasons. So, मैं बिहार में रहती हूँ, भागलपुर में, और मुझे जो नियरेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा नीट के लिए दैट इज़ 234 किलोमीटर्स, यानी कि पटना। सर, मैं पटना जाऊँगी बाय ट्रेन और मेरे पास कोई प्राइवेट कन्वेंस नहीं है, तो मैं प्राइवेट कन्वेंस तो नहीं जा पाऊँगी। यहाँ से मुझे पटना ट्रेन से जाना पड़ेगा और वहाँ पर होटल लेकर रहना पड़ेगा और वहाँ से भी मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना पड़ेगा किसी जनरल कन्वेंस से। सो दूसरी बात ये है कि मैं चश्मा लगाती हूँ और मास्क और चश्मा साथ नहीं जा पाते हैं सर, तुरंत भाप आ जाता है चश्मे में, तो उससे प्रॉब्लम होती है, बार बार हमें चश्मा साफ़ करना पड़ता है। हम ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं और अगर मास्क लगाते हैं तो स्पेक्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर प्लीज़ लुक इनटू दिस लिटिल थिंग्स, दिस मस्ट बी लुकिंग लिटिल बट दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस, सो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड पोस्टपोन इट। थैंक यू। मेरे बच्चे का नीट का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को जो परीक्षा होनी है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे साथ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से दिल्ली जो है 648 किलोमीटर दूर है, आने जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। लिहाजा हमारी एचआरडी मिनिस्टर साहब से और प्रधानमंत्री साहब से ये गुजारिश है कि ये परीक्षा स्थगित कर दें। लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, इस ईयर उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस के साथ कोविड का एग्जाम देते हुए कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि हम सब मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं एज ए डॉक्टर बट एज ए पेशेंट नहीं। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में हमें गवर्नमेंट को समझना चाहिए बच्चों की हालत। इस सिचुएशन में मास्क पहन के 3 घंटे मतलब 1-2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना पड़ेगा, फिर 1-2-3 घंटे एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप 5-6 घंटे कैसे एक समय मास्क पहन के रह सकते हो उसके, और मास्क उतारा भी तो आपके लिए और भी रिस्की होगा। क्योंकि मैं अस्थमा सफर करता था तो मेरे लाइफ के लिए और भी रिस्की हो सकता है अगर मुझे इनकेस कोविड हो गया। मैं जब से कोविड हुआ मैं उस टाइम से मैं घर में हूँ, मैं बिल्कुल अभी तक आज तक बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर है इस बात का। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट स्टूडेंट के। हेलो दोस्तों, नीट स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है। एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी जी ने कोरोना की एक वैक्सीन बना ली है जिसका नाम एसओपी है। ये एसओपी काम कैसे करेगा नीट के बाद पता चल जाएगा। हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी बस 2 बात जानते हैं, स्टूडेंट की सेफ्टी और नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, लेकिन हम लोग को इन पर भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सर जब आपको कोरोना हुआ था तो पूरा देश दुआ किया था, लेकिन अगर एग्ज़ाम के बाद हम लोग को कोरोना हुआ और मर भी गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाकी सर आप जो डिसीजन लेंगे हमें माने। जय हिंद। हेलो, मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंघाड़ा है। मैं राजस्थान के कोटा ज़िले से हूँ। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ और इस समय जो भारत की सिचुएशन और पूरे भारत की सिचुएशन बनी हुई है, इस समय
डेली कम से कम 60 से 65 हज़ार केस निकल रहे हैं। और इस समय जो नीट और जेई के जो एग्ज़ाम की तारीख बता रखी है 13 सितंबर और जेई मेन के लिए 1 से 6 सितंबर, उन तारीखों को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो अभी सिचुएशन बनी हुई है बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिलवाया जाए और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि वो एग्ज़ाम सही से दे पाएँ जिस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है। मैं खुद जहाँ कोटा ज़िले में रहता हूँ, यहाँ पे हमारी कॉलोनी में पूरे चारों तरफ से कोरोना पेशेंट है, चारों तरफ से मोहल्ले को सील कर रखा है। और इस सिचुएशन में एग्ज़ाम के लिए सेंटर पे जाना और फिर वहाँ पे पेपर देना इतने सारे बच्चों की भीड़ में। मैं रामनगर उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरा जो सेंटर है वो देहरादून है। देहरादून यहाँ से 240 किलोमीटर्स दूर है और रामनगर एक्चुअली उत्तराखंड का ही पार्ट है, देहरादून भी उत्तराखंड का ही पार्ट है। और हमें जो है रामनगर से हमें यूपी में एंटर करना पड़ता है और फिर दोबारा देहरादून में एंटर करना पड़ता है। अगर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊँ तो मुझे देहरादून में यूपी से होते हुए एंटर करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि यूपी जो है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है इस टाइम पे और अभी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं जाने के लिए, तो मुझे मेरी प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और प्राइवेट टैक्सी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ है। और मैं पेपर देने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करने वाला था, बट वहाँ पे अभी उन्होंने मना कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए, तो मुझे होटल करना पड़ेगा और होटल्स भी खुले नहीं है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं यही चाह रहा हूँ कि जेई और नीट जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी हैं नहीं। और मेरे साथ तो मतलब काफ़ी आएंगे तो जो एजमेटिक पेशेंट्स है उनका क्या वो ये मास्क पहन के बैठ सकते हैं 3 घंटे के लिए, है ना, बिना इस मास्क को निकाले? व्हाट इफ उनको एक एजमेटिक अटैक आ जाता है, ठीक है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाएगी? उनके पेपर का क्या होगा? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्पेक्स पहन रहा है तो स्पेक्स पहनने वालों का प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर स्पेक्स पहन लूँ तो ये पूरा ऐसे फॉग्ड हो जाता है, ठीक है, मैं जैसे कुछ बात करूँ या फिर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये पूरा फॉग्ड हो जाता है। तो ऐसे फॉग्ड स्पेक्स में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम बार बार इसको क्लीन करते रहे और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस ना करें? तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मास्क और स्पेक्स का कॉम्बिनेशन एक्चुअली नहीं जमता है, ठीक है। ये मास्क और स्पेक्स का कॉम्बिनेशन जो है ये बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा, आप कब तक उसको क्लीन करते रहोगे? I'm a NEET aspirant and I want NEET and JEE to postpone further because first of all we are already getting around 60 to 65,000 cases per day. Looking at the curve we can already understand that we will be getting around 1 lakh cases per day in September when the examinations are scheduled to be conducted. Conducting an examination in which there are around 24 lakhs of students that will be accompanied by their parents as well, that makes it a total of around 40 lakhs of people to 60 lakhs. That is basically putting our lives directly at risk. Among these people, let's not forget there are many heart or asthma patients. My own father has had a heart attack just a year ago and I do not want to risk his life. If I have prepared for this examination patiently for over the last 3 years, I do not mind waiting for another 2 months if that ensures the safety of my family and lakhs of people. Hello, my question is for NTA that why NTA is not responding to the mass number of tweets every day happening on the Twitter regarding the JEE and NEET postponement. The NTA is only focusing on its financial issues that when it will conduct these two nuclear corona explosions in the month of September, thousands and lakhs of people will become corona positive and they will when go to the hospital. From there they will collect taxes and it will aid to the government, but they are not thinking of the students. They are saying that the students who are corona positive will arrange separate rooms for them. But I want to ask one thing, that a person who is suffering from this fatal disease will be able to give the examination when he or she is in ventilator. He will be able to prepare for its examination.